As you all know, the master singer and interpreter of Kabir is in the center, Prahlad Singh Tipania, and besides all of his other incredible qualifications and awards, he is my official brother. To his left is his son, Ajay Tipania, who is an incredible percussion player on the dholak. And to his right, to your left is his son, and to your right is Devnarayan Sarolia, magnificent violin player. At that end is Priyal Maheshwari, who will be playing the small but important little cymbal, manjira. And over here, right next to me, is my young friend, Dharmender Tipania, who plays the harmonium. Everybody sings. Even I'm going to sing. So I'm not officially part of this. गुरुजी के चरणों में से शुरू करेंगे पहले आप Okay. So always starts with homage to the Guru in some form. There are many wonderful bhajans that recognize the Guru. So here comes one. Guruji ke sharano mein rehna. I like to tell people the repeated refrain of each song, because then you can listen for it. No, don't know Hindi, you can still listen to it for. So you'll hear Guruji. I better make sure I have it right. How? Guruji charano mein rehna. Charan means feet. Guruji means Guru. So stay at the feet of the Guru. That's what that means. Guruji ke charano mein rehna by Chela Tare. I won't read the whole thing. But I'll tell you one other part of the repeated chorus. Sorry, I always sort of choke when I'm in front of a crowd, even though I know it. Sab ghat naam sadho ek hai. That's where the refrain ends. Sab ghat my sadho. Sab ghat naam sadho ek hai. In everybody. Not just everybody, but every body, the name, which is another word for the sound, the fundamental sound of the cosmos, and addresses you as sadho. You will be addressed in various ways in these songs, but this time you're the sadho, you're the holy one, you're the practitioner. In every body, the name is one. So you'll hear that. The verses go like this. And it has lots of yogic imagery in it. So the first verse goes, raise the sound from your navel, like the sound from a striker. Oh yes, sir. It repeats something that I've translated as oh yes, sir. That navel path is difficult. It contains all colors. My brother, my seeker. Oh yes, sir. Reverse the navel path, and the way of Mount Meru will open. Oh yes, sir. Mount Meru is the road in back. Just keep going straight, sir, my sister, my seeker. Then from speaking of it being the sound coming from a striker, it goes on to say, the bell rings without a striker. A subtle voice, so subtle. Hear it, yes, sir. Bell and conch shell, flute and veena, the sound of the boundless right there, oh yes, sir. No day or night, no darkness or light, no burning sun, oh yes, sir. No thunder roaring, no lightning flashing, just drops of nectar flowing, yes, sir. With no place to dwell, this country's amazing. Death loses its power. Kabir says, listen, friend, let your limbs be cool, remember the boundless, unite with awareness. In every body, the name is one.
अभी कृष्णन जी ने, लिंडा जी ने सब कुछ कहा, तो सबसे पहले तो मैं कृष्णन जी को उनको साधुवाद ज्ञापित करूं कि उनकी वजह से आप और हम सब यहाँ पर हैं। और चूँकि नाथा जी से हमारे बहुत आत्मीय संबंध है, और चूँकि आज अधिकतर यहाँ पर सब योग और साधना को जीने वाली जीवात्मा यहाँ पर है, आप सबको भी हम प्रणाम करते हैं। और कबीर के, जैसे अभी लिंडा जी ने बताया, कबीर या जितने भी संत हैं, उन संतों की वाणी प्रैक्टिकली अनुभव करने का विषय है, केवल गाने का नहीं है। Greetings and salutations to you all. He expressed his gratitude to Christine, to Linda ji, to Natha ji, and he says the words and the poetry of Kabir and other mystic saints is not just a matter of singing or enjoying the poetry. It's a matter of experience. It's a matter of using those words as pointers to begin your inward journey. और उसका एहसास कोई किसी को भी माने, उसमें किसी धर्म की, मजहब की, पंथ की कोई बाउंड्री नहीं है, उसको हर इंसान महसूस कर सकता है। No matter what one believes in, what one follows or not follow, they have the potential to experience this essence within them. और वो जिस चीज़ का महसूस करने का काम बताते हैं, वो है जो पूरी दुनिया को सृजित करता है, या पूरी दुनिया को या पूरे जीव मात्र को सृजित करता है या चलाता है, या उसकी वजह से आप और हम सब हैं। And what is that experience? It's the experience of the Creator within us, that which runs, that which creates life and that which sustains life in us and everything around us. उसके तरीके अनेक हो सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे उसको अपनाएं। जैसे कल योग के बारे में समीर जी ने, कल कार्यक्रम जहाँ था, जब और कुछ साधक लोग भी थे, यहाँ पर भी होंगे, तो उसमें एक शून्यता के अंदर आने पर हमें क्या महसूस होगा, हमें क्या सुनाई देगा? वो सुनाई देगा जो एक है, जो आप और हम सब में एक है। There can be many different ways to reach there, but what is the actual experience when one touches that space within them? It's a sound. It's a subtle sound in the body, which each one of us can hear. और इसलिए वो गुरु जी के चरणों में बात करते हैं, तो गुरु आपका शरीर है, और उसकी इधर से यूं होता है ऊपर, हमारी नाभि से जो श्वास उठती है वो इधर रीढ़ की हड्डी से आकर के जब ऊपर आती है, तो एक विशेष प्रकार की झीणी सी आवाज़ का एहसास सबको हो सकता है। वो किसी भी मजहब का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी देश का हो। When one begins this inward journey, the awakening starts to happen and there is a flow of upward energy in the body. And when that starts to happen, one can experience this sound. और वहाँ पर इस तरह से ऐसा करने से, बजाने से जो ये आवाज़ होती है, ऐसा नहीं, बिना बजाए आवाज़ होती है। It's a sound which has no cause. These sounds that we make are happening because of some kind of striking. But this sound is just happening, it's unstruck. और वो साउंड बहुत ही सुरीली है, And it's very sweet. That sound is very sweet, he's saying. भजन इस तरह का है कबीर का। गुरुमूर्ति मुख चंद्रमा और सेवक ने जपो, अष्ट प्रहर निर्खत रहूं, मैं गुरु चरणन की ओर। इसलिए इस पद में गुरु जी के चरणों में घुलने की बात करते हैं, मिलने की बात करते हैं। तो चरण का मतलब होता है सीख, चरण का मतलब होता है हम विनम्र और नमन, हमारे अंदर नम्रता आ जाए, हमारे ईगो को दूर कर दे, हमारे सिर को थोड़ा पटक दे का मतलब थोड़ा सरल बन जाए।
इस इधर जो कचरा भरा हुआ है ज्ञान का, ध्यान का, गाने का, बजाने का, धन दौलत का, उस कचरे को पहले निकाल दें ताकि हमारी यात्रा इधर से अच्छी हो सके. And that is the reason this song talks about merging with the Guru's feet. It's a representation of giving up your ego and becoming humble. He says we have all kinds of rubbish filled up here, all this ego of knowledge, of skills, of money, possessions, relationships and whatnot. But if we can just let go of all those conceptual identities, then we can begin this inward journey. ऐसे गुरु नमा गोविंद नमा, गुरु नमा गोविंद नमा, नम नम लागा पाय. अरे अपने गुरु को यूं नमा, वेद में पढ़िहार. इसलिए गुरु से हित करने की जरूरत है. ये शरीर रूपी गुरु से हित करने की जरूरत है. इसके हित और हिफाजत की जरूरत है. इसको इसमें अंतर की यात्रा करने की जरूरत है. इसलिए कहा है ऐद गुरुमूर्ति मुख चंद्रमान सेवक नैन चको. अष्ट पहर निरखत रहूं गुरु चरणन की हो. इसलिए ऐसा कहा. इसलिए इधर से एकदम शून्य में आकर के इधर से अपनी यात्रा शुरू कर लो. बस ये है गाना. ये तो गाना बजाना आपको रिझाना है नहीं. इसलिए आप गुरु जी के चरणों में रेणा भाई चेला था. दुली दुली बस तू मिले रे तेरे की. बंदे थारे नहीं बस तुम मेरे कब मिलेगी? जब इधर आ जाए. भाई सुन में सुमार ना सूरत से मिले रे. सब घट नाम साधु एक है रे. साधु भाई सुन में सुमार ना सूरत से मिले रे. सब घट नाम साधु एक है रे. क्यों होती है? हर इंसान के अंदर अपने नाभि से जो श्वास उठती है और इस पीछे के रास्ते से इधर आती है और शून्य में हम टिक जाते हैं तो सबको आवाज उस धुन का, उस नाद का, उस शब्द का एहसास हो सकता है. And when this upward energy starts flowing up the spine and all the energy blockages, everything that we have stored opens up, we come into this place of nothingness up here. And that's when this resounding sound is always within us. दई रणुकार थारी नाभि से उठता दई दई डंक को चढ़े रे तेरे जी. दई रणुकार थारी नाभि से उठता दई दई डंक को चढ़े
क्योंकि हम अनेक तरह के बाहरी राग रंगों में, बाहरी अनेक तरह के विषय विकारों में, अनेक प्रकार के भोग विलासों में फंसे हैं, इसलिए नहीं सुनाई देता। And why does one not hear it right now? It's because the awareness is trapped into the senses and the respective sense objects. श्वास को ऊर्ध्व गति में ले आओ, और ऊर्ध्व गति में लाने के लिए हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, नोटोकार्ड है, वर्टिब्रल कॉलम है, इसमें जो सुषुम्ना का द्वार है वो इधर खुलता है, और इस वजह से इधर इसको पलटा करके कैसे लाएं, तो ये कहते हैं उल्टा घुमा ले तो मेरुदंड खुले रे कौन सा रास्ता? मेरुदंड साधो, विधम का मार्ग मेरुदंड साधो, विधम का मार्ग सीधी बाट धरो रे, सबगण नाम साधो एक है रे जी। साधु भाई सुन न सुनार न सूरत संग रे, सबगण नाम साधो एक है रे जी। जो इंसान जिस राह का राहगीर बन गया, और यदि हमारी श्वास को हम ऊर्ध्व गति में लाकर के इधर शून्य में होकर के यदि टिका लें, तो फिर क्या होगा? फिर ये बाजे बजाने की जरूरत नहीं, मंदिर में घंटी बजाने की जरूरत नहीं। इन मंदिर में, इस मस्जिद या इस गुरुद्वारे में वो घंटी हमेशा बजती है और बिना बजाए बजती है। इसलिए कहा है बिना डंका से बादल बादल बाजे, गिरा गिरा आवाज सुनो रे रे जी। बिना डंका से बादल बादल बाजे, गिरा गिरा आवाज सुनो रे रे जी। कैसी आवाज? किस वाद्य यंत्र की आवाज? हाँ, घड़ियाल शंख बांसुरी वीणा, घड़ियाल शंख बांसुरी वीणा, अनाद नाद घूरे रे, सबगण नाम साधु एक है रे जी। साधु बाई सुन न सुमार न सूरत संग रे, सबगण नाम साधु एक है रे जी। इसलिए वो कहते हैं कि उस नाम को सुनने के लिए किसी तिथि की, किसी दिशा की, किसी वो कहते नहीं बहुत सारे कौन सा ब्रह्म मुहूर्त, वो ब्रह्म मुहूर्त की जरूरत नहीं है, हमेशा ब्रह्म मुहूर्त। उसके लिए किसी इसी दिशा में बैठोगे तो सुनाई देगा, या यूं देखोगे तो करोगे, या ऐसा असर लगाओगे तो ही सुनाई देगा, ऐसा नहीं है। शुरू में जरूर करना पड़ता होगा,
परंतु बाद में ये करने की जरूरत नहीं। Once a person discovers this presence, this space within them, then all the practices will start dropping away, and it doesn't require any kind of special position, any kind of special day or time. It's just always happening. दिन नहीं दिन दिवस नहीं रजनी नहीं वहाँ सूरज तपेरे दिन नहीं दिन दिवस नहीं रजनी नहीं वहाँ सूरज तपेरे गाजे ना घोरे बिजली ना चमके गाजे ना घोरे बिजली ना चमके अमृत बूंद झरे रे सब घट नाम साधो एक है रे जी साधु भाई सुन में तुम्हार न सूरत सजने रे सब घट नाम साधो एक है रे जी इसलिए यहाँ पर दिन नहीं रेत, मतलब न तो दिन है न रात है, न बिजली की गड़गड़ाहट या चमक है, न कोई बादल की गर्जना है। तो दिन और रात हमारे अंदर वो मध्य की स्थिति कब होगी? जब न तो चंद्रमा हो न सूरज हो। इधर समीर जी आप जो कल कह रहे थे, तो वो जब दोनों ये स्वर और ये स्वर जब दोनों बराबर स्थिति में चलेंगे तो ना तो दिन रहेगा, ना तो चंद्र रहेगा, ना सूरज रहेगा। और वो है सुषुम्ना, वो है वजन करने का घर, वो है अनंतनाथ को खूब अच्छी तरीके से सुनने का समय। उसको खोदो। इसलिए वो कहते हैं वहां पर अमृत का झरण होता है सब में, और जो समय को पीता है वो अमर हो जाता है, शरीर नहीं। आपके व्यक्तित्व, आपका कृतित्व, आपके काम इस पूरी कायनात के हित और हिफाजत के लिए भी करते हैं, तो वो हमेशा अमर रहेगा। ये बात कही। The verse वाह वाह The वाह verse वाह talks about there is no night or day over here, there is no moon or sun. So he's saying it's a representative of these two right and left channels in the body, because in that space, the central channel, the Sushumna channel, starts to open up, and also it represents that there is no duality over there. It's all one. देश जब है नहीं वहाँ काल फरे रे बिन भक्ति का देश जब है नहीं वहाँ काल फरे रे कहे कबीर सुनो रे भाई साधो कहे कबीर सुनो भाई साधो शीतल अंग करो रे सब गण नाम साधो एक है रे जी साधु भाई सुन में सुमार न सूरत से मिले रे सब गण नाम साधो एक है रे जी। इस तरह से कबीर कहते हैं कि बिन बस्ती का, यदि हमने कोई कम्युनिटी बना ली, यदि हमने कोई मजहब बना लिया, यदि हमने कोई धर्म बना लिया, यदि हमने कोई संप्रदाय बना लिया, तो समझ लो कि फिर कहीं न कहीं गड़बड़ियां पैदा हो जाएगी। इसलिए इसमें रह करके भी हम इनसे ऊपर उठें। और इसीलिए कबीर कहते हैं कि हद में पीव न पाइया और बेहद में भरपूर, और हद बेहद की गम रखे और तासो पीव हजूर।
तो इन जाति के, धर्म के, मजहब के, ऊंचे के, नीचे के, गोरे के, काले के, देश के, परदेश के, स्त्री के, पुरुष के, इन हदों से इंसान जब ऊपर उठता है तो उसको जो सुनाई देता वो सब में होगा, जो नूर इधर है वो सब में नूर एक है, और तब वो सबकी हिफाजत और सबकी खैरियत चाहेगा। He says all communities, religions, sects, and anything, any lineage, they all have boundaries. So we should be careful about how we transcend our identification to these lineages or sects or boundaries while being in them, while having our practices in our communities. How do we transcend that identification with it? तो इसलिए हम पहले उस नाद को, माने संतों के मुताबिक सबसे अंतिम उनका अनुभव यही है कि मन का कंसंट्रेशन, का मन की एकाग्रता उस अनहद नाद को सुनने से होगी। और ये केवल कबीर नहीं कहते, सब संतों ने, सब पीर फकीर ओलियों ने यही बात कही। All the mystic saints and poets, not just Kabir, have said that at the end of all these spiritual practices, one finds this place of nothingness, which is represented by the sound, and by leaning into that sound more and more, all the disturbances and waves in the mind can start to settle down, and the mind becomes one-pointed. और इसीलिए एक गुरु नानक साहब का पद है, वो कहते कि ए हेली, ए सहेली, ए जीवात्मा, तू इधर उधर क्यों भटक रही है? हेली मारी बाहर भटको काहीं, सब सुख है तेरे घट माही। यानी जितना भी सुख या दुख, अच्छा या बुरा, हमारे अंतर से पैदा होता है। इसलिए हमारी सोच सकारात्मक सबके लिए कैसे हो सकती है, ये भी हमारे अंतर से ही पैदा होगी। और यदि हमारा किसी से नफरत पैदा होता है तो वो भी हमारे अंतर से ही पैदा होती है। और वो कहाँ से पैदा होती है, इसको खोजने की जरूरत है। All kinds of, so he talks about the next verse which is coming up. It's attributed to Guru Nanak, and it addresses the soul or the awareness. Why are you wandering around? All the things that you're looking for is within this body. And he says all pleasure and suffering, everything that we see on the outside gets manifested from within us, and it's somewhere within us. But what is the source of that manifestation? That is what we must find out. और इसी भजन को लिंडा जी अंग्रेजी में बताई। So listen for the repeated words. Haley Marty, yeah, I have to look again because I choke. Haley Marty, Bahar Bhatko Kai. Why are you wandering around lost? Why are you straying around? Haley, let me just say something about Haley. Haley is an intimate address. Last time you got addressed as a holy person, this time you're getting addressed as a girlfriend. Okay? You know, I could just say friend. Sometimes I eliminate the gender bias in the addresses, but let's just be girlfriends for this song. That Haley is definitely a feminine. Every single line has it. So girlfriend, why are you wandering around outside? All happiness is in the body. That's what gets repeated. And every line starts with dear girlfriend. Dear girlfriend, reflect on knowledge in the body. Who gives rise to your speech? See that one. Then birth and death will disappear. Oh, girlfriend, right channel and left channel merge in the bed of the central channel. There where lover meets beloved, who's man, who's woman? Dear girlfriend, sitar and veena are playing, conchal and flute all mingling. Stars are sparkling with soham, I am that. Without light, there's a flood of radiance. Dear girlfriend, I've met the Lord completely. He's filled me with the true word. Nanak touches the dust on the feet of the complete one who is present in every breath. इस बोलते को याद कर ले, इस
जिस बोलते को याद कर ले और जिसका इलाही नूर है, और जिसने पिंड और प्राण को रचिया सोए तो हाल हजूर है। गज राजा तो द्वारे झूलता न वही राजा जहूर है, उस मुर्शिद के शब्द तू चेता नहीं, सुना फिर गुरूर है। कहे कबीर घट चेत ले, कहे कबीर घट चेत ले, तेरे में तेरा नूर है, इस नूर पर जहूर दर से तो साहिब ही भरपूर है। यहाँ कबीर कहते हैं कि जो हम सब के अंदर बोलने वाला पुरुष कौन है उसको जान लो। कुछ कहना है? नहीं। अच्छा तो इसलिए हमारे सब के अंदर जो बोलने वाला ऐसा कौन सा परम तत्व है, कौन सा पुरुष है जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि नहीं बोले भी बोल सकते हैं, पर यह गतिविधि तब तक होती है जब तक हमारे अंदर वो एक परम तत्व जो छठा तत्व है वो है, तब तक हम ये सब बोल सकेंगे, चल सकेंगे, खा सकेंगे, पी सकेंगे, सो सकेंगे। और जिस दिन वो इधर निकल गया काम खत्म। What is that essence in us? What is that connection that allows us to express, that allows us to speak and act? And when that connection is severed, suddenly there is no more expression of life happening through this body. तो इसलिए गुरु नानक साहब का ये पद है, पहाड़ भटको काई, थारे ससुर है घट माई। पहाड़ भटको काई, थारे ससुर है घट माई। थारे ससुर है घट माई, थारे ससुर है घट माई। हाँ सब सुख है घट माही, थारे सब सुख है घट माही। तेरी माही पार घट को काई, थारे सब सुख है घट माही। घट में ज्ञान विचारो, थारो गुण है बोलन हारो। घट में ज्ञान विचारो, थारो गुण है बोलन हारो। अरे याकी करो और खाई, थारो जन्म मरण मिट जाई। अरे याकी करो और खाई, थारो जन्म मरण मिट जाई। हे जमानी पार भटको काई, थारा सब सुख है घट माई। इस बोलने वाले की पहचान करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो कहते हैं कि इसकी ओळखाण करो, पहचान करो, महसूस करो, देखो। How can we investigate this connection, this source in us which enables us to express? और उसका महसूस करने के लिए इधर आना पड़ेगा। वो ये कहते हैं, गुरु नानक साहब भी ये कहते हैं, कबीर भी ये कहते हैं, या बनानाथ भी ये कहते हैं, और अन्य संत भी ये कहते हैं। इसलिए कहा है पिंगला पिंगला नारी, या में सुमन से समारी। पिंगला पिंगला नारी, या में सुमन से समारी। क्या होगा? अरे मिल पिया संग प्यारी, या में कौन पुरुष कौन नारी।
उसमें ऐसा भी देख सकते हैं कि जब हम शरीर छूट जाता है और इसमें से जब जीवात्मा निकल जाती है तो बताओ वो स्त्री की है कि पुरुष की है? एक है, एक है। इसलिए कहा कि माटी में माटी मिली और मिली पवन में पौन, और मैं तो ये पूछूं पंडिता दोनों में मुआ है कौन? और आप सब लोग जानते हैं कि आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा अमर है। पर हमको ऐसा भ्रम पैदा कर दिया कि वो वापस जन्म लेगी, पता नहीं लेती कि नहीं लेती, मुझे नहीं मालूम। आप इसकी खोज करिए, शोध करिए, परंतु और वो कैसी है, कहाँ जाती है, इसकी भी खोज करिए कि वो स्वर्ग में है कि नर्क में है कि सतलोक में है कि अमरलोक में है, इसकी भी खोज आप करिए। He's saying when we get to that place, all these dualities, that which appears as two just becomes one. And he says we can also think of it as when someone dies, that which leaves the body, is it a woman or a man? It's just that one essence in each one of us. Feel free to move. Yeah. हमारी बाज बीन सितारा, वहाँ सतमुरली का झनकारा। बाज बीन सितारा, वहाँ सतमुरली का झनकारा। क्या होगा वहां पर? अरे सोहम चमके तारा, वहाँ बिना जोत उजियारा। अरे सोहम चमके तारा, वहाँ बिना जोत उजियारा। तेरी मारी बार भट को खाई, धारा सतुक है घट माई। अंतिम में गुरु नानक साहब कितने विनम्रता से कहते हैं, तेरी भाई साहब कबीर गिरा पूरा, जिने वचन दिया भरपूरा। तेरी भाई साहब कबीर गिरा पूरा, जिने वचन दिया भरपूरा। नानक चरणों की धूला, हरदम हाल हजूरा। नानक चरणों की धूला, हरदम हाल हजूरा। तेरी मारी बार भट को खाई, धारा सब सुख है घट माई। तेरी मारी बार भट को खाई, धारा सब सुख है घट माई। सब सुख है घट माई, सब सुख है घट माई। अब बताइए, सब सुख आपके पास में, हम सबके पास में, तो फिर अपन क्यों भटक रहे हैं? ये एक विचारणीय प्रश्न नहीं है? इसलिए प्रारंभिक स्थिति में मन को टिकाने के लिए लोग कहीं भी जाते हैं, ठीक है वो चले जाएं, परंतु जब महसूस होने के बाद में भी यदि हम जिंदगी भर तक करते रहें, या ये सब करने के बाद करते करते उनको कोई महसूस ही नहीं हुआ, या उनके मन की भटकन समाप्ति नहीं हुई, तो बताओ फिर क्या जाना? कुछ नहीं जाना। He talks about all asceticism and practices that we do. If we have experienced something because of them, then why do we continue wandering outside? We should just connect with that experience. And if after practicing that practice for a while we haven't experienced anything, then maybe we need to think about taking up some other practice. नहीं भाई, जैसे यदि हम कहीं पर भी जा रहे हैं और हमको सब, जैसे समीर जी ने कब
कल खिलाया, अभी बहन भी आज कुछ खिलाएगी या लिंडा जी कुछ खिलाती हैं, और खिलाने के बाद में हम जब खा रहे हैं और खाने पर यदि हमें उसका हमारी भूख नहीं मिटी या खाने पर हमें वो एहसास नहीं हुआ जो हम चाहते हैं, तो फिर उसको छोड़ करके दूसरी और कुछ खाने का प्रयास करो या ना महसूस करने का प्रयास करो। ये जितने भी तरीके हैं, पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, जप तप, ध्यान, योग, साधना, ये सब वो तरीके हैं जिनकी वजह से हम एकाग्रचित होकर के अपन उस नाद को सुन सकते हैं। और जब हम सुन लेंगे ना, फिर बाद में ये सब करने की बाद में जरूरत नहीं है, जानने के बाद में क्या जरूरत है। तो इसलिए मैं एक, जैसे नाथा जी और बहन और आप अधिकतर ये जो जिस परंपरा को वो जीते हैं और वो सब दूर फैला रहे हैं या आप जो कर रहे हैं, वो शिव मार्गी नाट ट्रेडिशन है। और उसमें भी उन लोगों ने पूजा पाठ सब कुछ करा, खूब करा, और करने के बाद में जब उनको महसूस हो गया, फिर उन्होंने उसको छोड़ दिया कि बस अब मैं ये नहीं करूंगा, अब मुझे ये करने की जरूरत नहीं है। जान लिया तो फिर क्या, जब जाना तब जाना, आप खुद ही वो हो जाते हैं। और जैसे सोहम शब्द की बात आती है, अभी गुरु नानक साहब ने कहा, तो सोहम का मतलब होता है हमारे अंतर में जो एक नाद पैदा होती है, उसकी आवाज इस तरह की सुनाई देगी, हमको ऐसा लगता है कि ऐसी आवाज आ रही है। जैसे ओम ये जब यहाँ से उठता है तो ऐसा आवाज कभी सुनी कि खाली बाहर बाहर ओम ओम कर रहे हैं या बाहर सोम सोम कर रहे हैं। करने दीजिए। He implores us all to use our discretion in choosing the methods and the means that we use, and also to keep in mind that why are we practicing all of these things? We are practicing it to experience something within us, and once you touch that experience, then the practices should start falling away, because you can always just instantly connect with that experience when you want. And he also talks about the word Soham or the word Om, which is so popular and we all chant Om. He says it's actually the sound of that subtle sound, that anhad naad, that unstruck sound. It's what people experience that sound as, and they gave it this name. So even though we chant it on the outside, we should question, have we ever really experienced it within us? और इसीलिए सोहम को शिवोम भी कहा, शिवोम। और शिवोम शिव से बना, और शिव में ईश्वरी तत्व मौजूद है सब में। जैसे शिव और शक्ति दोनों के मिलन से पिंड का सृजन होता है, तो शिव जब तक इसमें सोहम में ईश्वर है या शिव में ईश्वर है, तब तक वो है। और जिस दिन ईश्वर निकल गया उसमें से, तो फिर बाकी क्या बच जाता है? शव। यदि इस शी में छोटी की मात्रा को अलग हटा दें तो क्या बचता है? शव, डेड बॉडी। तो हमारे अंतर में डेड बॉडी कब हो जाती है? ये शरीर खत्म कब हो जाता है? इसमें से ये स्वर निकल जाता तब, ये ईश्वर निकल जाता तब, ये शिवोहम निकल जाता तब, या वो सोहम निकल जाता है तब। So Soham or Om is also called as Shivoham. Shiv and Shakti is, as you all know, the consciousness and the energy which manifests all around us. So he's saying the word Shiv has the E in it, which represents Ishwar or the divine element within all of us. If that is removed from it, then it becomes Shav, which in Hindi means a dead body. So, as you all know in yoga, Shavasana, the last pose that you do, you lie down like a dead body. So, so he's saying we must investigate what is it that goes away from the body and the body becomes dead. It's our breath, and that is the portal, that is the entryway into experiencing this formless divinity within us. और उस शब्द को बोला नहीं जा सकता, वो अक्षर नहीं है। राम, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, देवी, देवता, ब्रह्मा, फलाना, ये सब ये हम बोल रहे हैं तब है, वो बोलने की जरूरत नहीं है, वो ऐसा शब्द है।
And this divinity that we all carry within us cannot really be expressed in words, which is why there are so many names for it. Ishwar, Allah, Ram, Om, and whatnot. But it's as soon as it becomes a word, it becomes something manifested, a form. But that's not it. It's something which transcends form and space and time. Therefore, we shouldn't get lost in the words, but we should try to find that experience within us, which is beyond words. और इसलिए कबीर साहब का एक पद है कि वो तब होगा जब हम इन जो देख सकते हैं, जो महसूस कर सकते हैं, इससे ऊपर उठे। बेगम, बेगम की गम करो। और बेगम की गम का मतलब होता है 5 तत्व और 3 गुण इस पिंड में जो है, इससे ऊपर हमारे मन को टिका करके जो होगा वो शब्द है जिसको बोला नहीं जा सकता, जिसमें कोई मात्रा नहीं है किसी तरह का भी। वो तो पद किस तरह का है, लिंडा जी बताएंगे। Okay, well, a large smile flashed over my face when he mentioned the name of this bhajan, because this is one that I love very much, and that usually he refuses to sing because he thinks it's too deep and too hard. I don't know if that's the only reason, but I've been obviously this group is not. It's not, nothing is too deep or too hard. No, listen, I really, really love this song, and it is deep, and I shouldn't say much because it's about not saying much. So, the word begum ki gum, which you'll hear all again and again, I have translated as nowhere, go there. Yeah, some light. उनके लिए Unfortunately, we don't get a flood of radiance without turning on the lights the way we do in the sun. Yeah. We're not focusing enough. So you'll hear begum ki gum. The gum is a path, or the path that the Guru shows. So this is the path of no path, and I've translated it as nowhere, go there. And this time you're going to be addressed as the Hans, the swan, which is a symbol, an image for your very pure, most essential essence, or your true self. So here's the refrain. Nowhere, go there. Swan, go there. Return, stay there. Nowhere. You'll have no fear of birth and death. That'll get repeated. But you can listen to Begum Kigum, those words. Here are the verses. That one has no sect, no 12 branches, no ground to stand on. You can't say its name out loud or silently. So whose name are you trying to remember, Swan? Without land, the water wheel turns. Without cloud, without water, without a vessel, nectar pours. So drink that nectar, Swan. Brahma, Vishnu, Shiva, those gods all come and go. That syllable isn't long, it isn't short. That's the word you should repeat. Swan. What's gone will not come back. So live this moment now. Kabir says, seekers, build your house in that country, you swan. Nowhere, go there, swan. Go there, nowhere. Return, stay there. You'll have no fear of birth and death. और हंसों जैसे आप सभी हंस हैं, हंसों। तो हंस को यदि पलटा जाता है तो सोहम होता है। नाद जब उठती है और बैठती है तो जिसको हम और सोज का जो आवाज आता है, वो उलट लो या पलट लो, उसमें आवाज की झनकार में थोड़ा बहुत मन थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता होगा, परंतु है वही। उसको पलटने, जैसे राम को पलटे तो मरा हो गया, और मरा मरा बोले तो राम हो गया। उसी तरह से सोहम को पलटेंगे तो हंसा हो जाएगा।
और हंस वो जो है जो आप और हम सबको चलाता है, आप और हम सब जिसकी वजह से जिंदा हैं, वो स्त्री पुरुष नहीं है, वो एक नूर है। I'll just explain this. He just pointed out that the word Hans is actually an expression of Hamso, which is an expression of I am that, famous expression of oneness, of non-duality. And he says it's also an expression of breath. Soham. That's enough. बहुत अच्छा। यदि हद में पीवन पाइया, हद में पीव न पाया, बेहद में भरपूर। अरे हद बेहद की गम लखे, तासो पीव हजूर। तो हद चले सो मानवा, हद चले सो मानवा, बेहद चले सो हद बेहद दोनों तजे उल्टा मताना। बेगम की गम कर रे हंसा, बेगम की गम कर रे, बेगम की गम कर रे हंसा, बेगम की गम कर रे। अरे बिगड़ करो बेगम मेरे वो, बिगड़ करो बेगम मेरे वो, जन्म मरण का नहीं कर रे हंसा, बेगम की गम कर रे, बेगम की गम कर ले रे हंसा, बेगम की गम कर ले। नाथ दवारस है नहीं उनके, ना कोई धरणी कर रे, नाथ दवारस है नहीं उनके, ना कोई धरणी कर रे। अरे जाप जपा है नहीं उनके, जाप जपा है नहीं उनके, सुमरन जिनका कर रे हंसा, बेगम की गम कर रे, बेगम की गम कर ले रे हंसा, बेगम की गम कर ले। बिना धरण एक चलन है, बिन बादल बिन जल रे, बिना धरण एक चलत है, बिन बादल बिन जल रे। अरे बिना अमर अमीरा सबर से, बिना अमर अमीरा सबर से, वही अमीर पिया कर ले हंसा, बेगम की गम कर ले, बेगम की गम कर ले रे हंसा, बेगम की गम कर ले।
रे अरे कहे कबीर सुनो भाई साधो कहे कबीर सुनो भाई साधो उस देश घर कर रे हंसा बेगम की तू गम कर रे बेगम की तू गम कर रे हंसा बेगम की तू गम कर रे अरे विगत करो बे गम मेरे हो विगत करो बे गम मेरे हो जन्म मरण का नहीं कर रे हंसा बेगम की तू गम कर रे बेगम की तू गम कर रे बेगम की तू गम कर रे कबीर कहते हैं उस देश में घर करो जहां पर इस तरह का कोई पक्षपात नहीं है, जहां पर ऊंचा नीचा नहीं है, जहां पर जहां किसी तरह की बाउंड्री नहीं है, जहां किसी तरह का अवरोध नहीं है। हमारे इस देश में कहां पर अवरोध है, ये विचार करने की जरूरत है। ये नहीं कि अमेरिका या हिंदुस्तान या पाकिस्तान या फलाना है, ये उन देश को इधर से हटा दो। इस देश की बात करो, इस पिंड रूपी देश में, इसमें वो चीजें कहां पर होगी जहां पर ये हदें बनती है। हमारे इस पिंड में कहां से हदें बनाते हैं हम? बताइए। He says, Kabir says, when you find that place of oneness or nothingness within you, make that your home, because that is a place which has no boundaries. There is nobody above, nobody below. There is no kind of duality over there. And then he is asking, in this body, in this country that we reside in, inside the body, what are those places through which these divisions, these boundaries, these prejudices, these concepts of separateness, they come? What are those places? बताइए आप, मुझे तो पता नहीं। बोल रहे हैं माइंड, मन में से। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, मन से होता है ये। पर मन किधर है? इसमें मन कहाँ है? But where is the mind trapped in? She's saying bhatak raha, wandering. अभी वापस नहीं आया, किधर चला गया? भटक रहा है, पता नहीं कहाँ भटक रहा है। She says she doesn't know where it's wandering. यही है ना सबकी दुविधा अभी। It's everybody's problem. आप कह रहे हैं सही है, पर मन से ये सब होता है, कब होता है? जब हम दूसरों को पराया मानते हैं। जब हम दूसरों को पराया मानते हैं। दूसरों को पराया कब मानते हैं? डर से, डर, भय। भय कब पैदा होता है? जब हम दूसरों को पराया मानते हैं। हाँ, जब किसी चीज को खोने का डर हो। खोना और पाना। So what is this dialogue for all the Yeah. खोना और पाना लगती कब? है, भूख So लगती she's है saying तब। it's when we think of other people as separate from us. So he asks, why do we feel that way? बहुत She अच्छा है। says because of fear. Then he's like, what is that fear? उनका और आपका जो उत्तर है वो बिल्कुल अपनी जगह पर ठीक है, पर मैं केवल इतना मैं सोचता हूँ कि ये सब पराया या अपना, या उन्होंने जो कहा वो तब होता है जब मन अपनी इंद्रियों के मार्फत बाहर गया। और वो कब हुआ? जैसे मैंने
ये इसको देखा या इसको देखा या वो लाइट को देखा, तो मैं सोचता हूँ कि ये लाइट काय का है, तो फिर मैंने सोचूंगा कि ये शायद कैमरा है ना। और ये जब सोचा तो मैंने सोचा कि यार इसको लेना चाहिए। ये जैसे ही हुआ तो फिर मैं उठ करके जाऊंगा तो सब हाथ पैर काम करेंगे, और फिर मैं जा कर के उनसे या तो प्रेम से लूँगा या फिर उनको किसी तरह से टॉर्चर करके लूँगा या कोई ऐसा जाल फैलाऊंगा कि वो मुझे दे दे। ये कब हुआ? ये मन का संचार बाहरी चीज़ों की वजह से उसमें हम फंसे, तब इंद्रियां काम करने लगती है और बस फिर कर्म शुरू हो जाता है। और जितने भी ये कर्म हैं, अच्छे बुरे, ये मन के बिना नहीं होता। मन बिन कर, एक भजन है, कबीर का एक पद है, अवधू मन बिन कर्म नहीं होता। आप अलख अंदर हुई बैठा, बूंद अमीर छूटा, और उसी बूंद का सकल पसारा, परस परस हुई झूठा। और ये क्यों हुआ? पहले पिता अकेला होता, पुत्र जन्म या दूजा, और मात पिता में भेड़े होया, करी कर्म की पूजा। तो मन की वजह से, कर्मों की पूजा से आप और हम सब बन गए। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि मन का अवतरण, मन, ये मैं सोचता हूँ, ये सही है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, आपके जो यात्रा है वो जो भी हो उसको भी मैं अवरोध करना नहीं चाहता, पर मैं ये सोचता हूँ कि जैसे ही मन इधर आया यहाँ, तो रूप में फंसा, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये इनसे ले लेना चाहिए। इधर आया, आपने मुझे बहुत अच्छी बात की तो मैं बहुत खुश हो गया, और यदि थोड़ी बात कड़वी की तो मैं आपसे नाराज हो गया, फंस गया। नहीं, तो इसी तरह से यहाँ से जैसे नीचे उतरे कि सब फंसेंगे, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो, चाहे संत हो, चाहे सदगुरु हो, चाहे जो भी। सदगुरु तो नहीं फंसना चाहिए मेरा जहाँ तक ख्याल है, क्योंकि सदगुरु का इनसे कोई लेना देना है नहीं। और सदगुरु पिंड नहीं होता है, सदगुरु वो होता है जो अविनाशी है, सदगुरु वो होता है जो सबका एक है, सदगुरु वो है जो सबके साथ है। He says it happens because the awareness or the mind goes outward through the senses, and when we perceive something through the senses, it's not just a pure perception. There is, based on our conditionings, we label it as the different forms, we label it based on what appears in front of us, and that is why we are lost in all of these things. And he also says we are all in this momentum of karma because we are also a product of karma, or this body is a product of karma, if you know what I mean. So he says the way to come out of it is to withdraw awareness from the sense perceived objects every once in a while, and then direct it towards that place within us which is beyond the senses. तो इसलिए जहाँ इधर से नीचे आए कि फंसे और इधर से ऊपर आए तो मुक्त हो गए। ओवरकम डिजायर, आंखों से उतरती बात वो डिजायर हो जाती है कि ये चीज चाहिए मेरे को, ये चीज चाहिए, चाहत से तो निकल के ऊपर जाएंगे तब आपको ठीक है। हाँ, तो नैनो माही मन बसे वाली ये एक साखी है कबीर की कि नैनो माही मन बसे, यानी हर इंसान का अधिकतर मन जो है यहाँ पर विराजता है, और जब मन यहाँ पर विराजता है तो यहीं से हमारे जो पांचों विषय है वो पैदा होते हैं, रूप का, रस का, गंध का, ये शब्द का और स्पर्श का, और ये केवल इतने से होता है। और सबका जितना भी दुनिया में अच्छा या बुरा काम होता है वो केवल इतने से होता है। इसीलिए शीश काट चरणों में धर दूं, ऐसा कई जगहों पर आता है। चरणों की बात अभी शुरू में करी थी, यदि हम ये इससे ऊपर उठ जाएं तो शायद इससे मुक्त हो सकते हैं। इसको विचार करके देखें या करके देखें। तो परंतु जैसे ही हम बैठते हैं ध्यान में तो हमें जो अभी तक किए ना वो सब चीजें याद आती है। इसका मतलब ये कि अभी हमारा मन सूक्ष्म रूप से इधर नहीं आया, वो सूक्ष्म रूप से भी इन विषयों में ही फंसा हुआ है।
इसलिए स्थूल से सूक्ष्म में आने के बाद हम उस कारण पर जाएं कि इधर क्यों जा रहा है। उस कारण से यदि थोड़ा सा जान ले तो हम कारण से महाकारण की ओर आकर के यानी उससे मुक्त हो सकते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है। तो वो अपने आप जगहों पर, क्योंकि वो इंद्रियों का तो संचार नहीं हो रहा परंतु सूक्ष्म तत्वों के ऊपर तो जुड़ रहा है वो। तो इस वजह से इसके कई तरीके हो सकते होंगे, जो भी आप करते हैं करें, परंतु उसको प्रैक्टिकली अनुभव करने की कोशिश करिए। फिर He says, because awareness, Kabir says in one of the couplets that most of our awareness resides in sight, in our eyes. And we decide things, all the cravings and aversions arise from what appears in front of us. And he says, even when we sit in meditation, everything that appears in front of us, even at a subtle level, is everything that we have experienced in the past through the senses. And so, he asks us to become a dispassionate observer and be steadfast in that observation, so that once all of these things clear away, then we discover something which is something that it's not part of what we have experienced through the senses before. इसलिए इसमें रह करके भी हमें अनासक्त में रहने की कोशिश करना चाहिए। और वो इसलिए कि ठीक है कैमरा पड़ा है, आप हैं तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, क्या लेना देना मेरे को, तो ठीक। परंतु यदि मेरे को ले जाए कि हाँ बस इनका ये मुझे बहुत अच्छा लगा तो वो लूँ, तो हुआ फंसा। इसलिए ठीक है तो अच्छी बात है और नहीं है तो अच्छी बात है। ये अवस्था हमारे जीवन में आ सकती है शायद, कोशिश करने पर। So we should all strive to become unattached to these cravings and aversions that come. So he says the perception will happen, we can't avoid it, but when it happens and you feel this urge or energy of doing something about it, watch it instead of just flowing with it. और वही सहजता का मार्ग है, वो सहज की स्थिति हो जाती है। और जैसे अब इसको इस तरह से देखें कि आप और हम सब के अंदर कोई एक ऐसा तत्व है जिसका इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। जैसे अभी आपने बताया, बेटी ने बताया कि इसकी वजह से होता है, तो मन की वजह से होता है, परंतु इस मन के साथ ही साथ यही मन जब और ऊपर चला जाता है तो फिर वो इन चीज़ों में ज़्यादा उलझता नहीं है। और ये भी विचार करिए कि जो चीज़ मिल जाती है तो उसके बाद थोड़ी सी देर बाद फिर उसको वो छोड़ करके फिर दूसरी की ओर आकृष्ट होने लगता है, यानी दूसरी चीज़ की ओर फंसने लगता है। तो इसलिए कभी नाथ संप्रदाय के संत में बनाना जी महाराज, उनका एक भजन है कि आप और हम सब के अंदर वो चीज़ें हैं जो चला रहा है, इस पिंड को चलाने वाला, उसको आँख से न नाक से न इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। वो एक रस रहता है और सबके अंदर एक रस रहता है, बस उसका इसमें रहकर कभी इससे अलग है। तो आप और हम सब भी इसमें रहकर कभी थोड़ा सा अलग रखने के कोशिश करना चाहिए इस पिंड के रूप में। So he says once we start watching that, once we start establishing ourselves in that dispassionate observation, then that becomes a sahaj state, a state of simplicity, and then we are like that through everything that comes in life, good or bad. And then he says the next song which comes also talks about that, because it has an imagery of the supreme being, or the thing, the essence within us which sustains life in us, is beyond all these senses and can be perceived without the senses. So while we are alive, we should also strive to bring our awareness up to that level. और इसीलिए आसक्ति यदि है तो हम फंसेंगे, और आसक्ति यदि नहीं है तो नहीं फंसेंगे। और जो हमको चलाने वाला है उसको इस शरीर से कोई आसक्ति नहीं है, वो है जब तक ये शरीर काम करेगा, और नहीं है तब तक खत्म हो जाएगा। तो उसके बारे में हाँ, भेड़ा नहीं तो वो भजन है। देखिएगा नाथ संप्रदाय के संत भी यही बात कहते हैं। The previous song ended with a reference to the country. It said, "Make your home in that country." And this song repeats a line about
the country, a certain country. And the line that it repeats is, Aisa desh diwana. Desh means country. That country is mad. You'll hear that over and over again, Aisa desh diwana. And the rest of the refrain goes, it's right here, but you don't find it. Someone wise turns towards the Guru and understands. This country is mad. Oh, seekers and friends, I will say again and again to you, this country is mad. What does Versus- mad mean? Huh? What does mad mean? Maddening? Diwani? What does In this context, what does Diwani mean? Or What mad? does mad mean? Yes. I'm certainly not going to try to answer that question, and don't ask him. Okay. I want to know. You know, that's the power. No, sorry, that's the power of the song, right? Somebody says this country is mad. What does that mean? Maybe you know. I don't know. Anyway, let me just tell the content of the song, I love it. and then you'll figure out what it means. Or maybe अभी you बात won't. करते हैं मेड के बारे में। ठीक है। The first verse says, I don't go on pilgrimage. Wait, actually, the first verse says, actually, they keep changing the order, so it's in one of these orders. I don't go on pilgrimage. I don't repeat mantras. I don't practice asceticism. I don't do meditation. Just as I am, I play in this world. No special place, no special form. Oh, seekers and friends, this country is mad. I move without feet, see without eyes, hear words without ears, smell fragrance without a nose, drink without a tongue. Oh, seekers and friends, this country is mad. On the lake of spontaneity, the swan remembers, takes flight without wings, eats pearls on Mansarovar's banks, the source of pure water. From this practice, from this trick, it's almost a word that means trick, I know the supreme, the ancient being without a body. Mananath says, that infinite spirit is in everything. Why talk of more here or less there? Seekers and friends, this country is mad. तो मेड के बारे में मुझे मेड के बारे में थोड़ी चर्चा कर लें। मेड का मतलब पागल नहीं है। मेड यानी अंग्रेजी में पागल कहते हैं, परंतु यहाँ पर इस भजन में दीवानापन या जिसको कहना दीवाने का मतलब होता है जब कोई आदमी किसी काम के लिए इतना उसमें रम जाता है, घुल जाता है, तो उसको उतना ये भी पता नहीं कि वो क्या कर रहा है, उसने कपड़े पहने कि नहीं पहने, कि वो खा रहा है कि नहीं खा रहा है, पर वो उसी में मस्त हो जाता है। That's a possessed. He's not exactly possessed. He's saying that in this song, mad does not mean crazy. You probably figured that out. It doesn't mean insane. But it means that if somebody gets into such a state that they don't even know exactly what they're doing, they don't distinguish their shirt from their whatever, they're so completely lost in it. They're must. This is a great word. Must means totally blissed out. जैसे मीरा प्रेम दीवाना। नहीं, That's मीरा- ecstatic. You get it, ecstatic. वो लोगों की निगाह में उसको पागल दिखेगा, परंतु वो अपनी धुन में ये समझते हैं कि पागल का मतलब पागल नहीं है। वो समझते हैं। जैसे मीरा प्रेम दीवानी है ना, तो ecstatic की जरूरत नहीं है। ecstatic कहते हैं। तो अब ये बताओ कि इसमें कितने पागल हैं? Crazy. What is बहुत it? अच्छी बात है। How many of you are crazy like that? How many of you are crazy like that? Oh, yeah. Yes. यदि मैं मर जीवा समुद्र का
मैं मर जीवा समुद्र का ने डुबकी मारिए अरे मुट्ठी लाया ज्ञान की उल्टा में वस्तु तो पीले प्याला प्रेम का ने अखिया कर ले लाल अरे भजन करो सतनाम का धर्म लेना। भेड़ा है पण मिलता नाही भेड़ा है पण मिलता नाही गुरुमुख जाए कोई कोई जाना गुरुमुख जाए कोई कोई जाना संतोरे भाई ऐसा देश रे दीवाना और वो दीवानापन तीरथ करने से व्रत करने से पूजा पाठ करने से इधर उधर भटकने से नहीं होता अंतर में होने पर अपने आप ऐसा बन जाता है वो है दीवानापन। तीरथ करुणा कोई जब तब साधु तीरथ करुणा कोई मैं जब तब साधु ना कोई धर्म में ज्ञाना ना कोई धर्म में ज्ञाना तो जब ऐसा होगा तो क्या होगा मालूम है? ऐसा हो रे हलक माई खेलू हो ऐसा हो रे हलक माई खेलू नई मूरत रसताना संतोरे भाई ऐसा देश रे दीवाना इसके लिए बाहरी रास्ते नापने की जरूरत नहीं है इन पैरों से वहां जाने की जरूरत नहीं है इसलिए कहा है पग बिन पंथ नेर बिन निरखू पग बिन पंथ नेर बिन निरखू बिन सरवन सुनो बेना बिन सरवन सुनो बेना क्या करें ज्ञान बिना है सब लेत सुगंध्या ज्ञान बिना हो सब
नहीं है। अंतर के नूर को देखने के लिए इन आंखों की जरूरत नहीं है। अंतर के नाद को सुनने के लिए इन कानों की जरूरत नहीं है। और अंतर के रस को चखने के लिए इस जीभ की जरूरत नहीं है। ये बात कहते हैं बनाना जी महाराज, ये बात कहते हैं कबीर साहब, ये बात कहते हैं गोरखनाथ जी और सब संत। पर ये तब होगा जब हम सहज बन जाएं, ये तब होगा जब हम सरल बन जाएं, ये तब होगा जब हमारे अंतर का अहम खत्म हो जाए। To listen to that sound, we don't need these ears. To taste that nectar within, we don't need this tongue, and so on. And this will happen when we become sahaj, simple, when we let go of our complexities, when we let go of our ego. और इसीलिए कबीर कहता है कि माया तजी तो क्या हुआ, मान तजाने ही जाए। और मान बड़े ऋषि मुनि गड़े, मान सबन को खाए। हमारे अंदर इतना घमंड है, हमारे अंदर इतना ईगो है, और हम बड़ी बड़ी बात करते तो बड़े बड़े लुट गए, पिट गए, कट गए और सब सत्यानाश हो गया। नहीं, इसलिए कहा है सेज सरोवर सिमरत मनसा सेज सरोवर सिमरत मनसा पर बिन किया रे प्यारा पर बिन किया रे प्यारा मान सरोवर मोती मुगदा मान सरोवर मोती मुगदा निर्मल नीर निवाड़ा निर्मल नीर निवाड़ा ये संत रे भाई ऐसा देश रे दीवाना और जिसने इस मानसरोवर के अंदर स्नान किया या सहज बन गया तो फिर वो कभी किसी को ऊंचा नीचा गोरा काला हिंदू मुसलमान नहीं करेगा, क्योंकि उसने जान लिया कि इसमें सब में वो जगदीश है, वो परमात्मा है, ईश्वर है, अल्लाह है, वाहिगुरु है, राम है, कृष्ण है, देवी है, देवता है। इसीलिए आखिरी में बनाना जी महाराज कहते हैं, यूं जाना जग बीस जुगत कर यूं जाना जग बीस जुगत कर बिन बिन पुरुष पुराना बिन बिन पुरुष पुराना ब्रह्म सकल में के बननाथ या ब्रह्म सकल में घट मत खाओ क्यों
ऐसा हो गया है, अब आखिरी में एक भजन और सुना देते हैं। तो इसलिए जिन्होंने एक को जान लिया तो सब जान लिया। He said जिन्होंने- one more song. Then he said, if you know the one, you know everything. तो इसलिए लिंडा जी कह रहे यूं, तो उसका मतलब है कि जो वह एक न जानिया, एक लजानिया जिसने एक को नहीं जाना उसने कुछ नहीं जाना। तो जो वह एक न जानिया बहु जाने क्या होए, और एक से सब होते हैं सबसे एक न होए। आप और हम सब में एक ऐसा परम तत्व है जिसकी वजह से अभी सब हिलडुल रहे हैं, नाच गाना कर रहे हैं, सुन रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। और जिस दिन वो एक निकल गया तो सब काम खत्म हो जाएगा। इसलिए उस एक को जान लो। जिसने एक को जाना तो सबको जाना। इसलिए आप और हम सब आज के बाद एक से लग जाओ। मैं लागा उस एक से और एक भया सब माही, और सब मेरा और मैं सबन का और दूसरा नहीं। तो बस ऐसा है। तो और ये तब होता है जब उस करतार की कला को जिसने महसूस कर लिया, वो जो उस करतार की कला को महसूस कर लेता है, उसको पत्ते पत्ते और जर्रे जर्रे में वो सदगुरु परमात्मा ईश्वर अल्लाह वाहि गुरु दिखेगा। इसलिए वो सबकी हिफाजत करेगा। और इसीलिए कबीर कहते हैं कि कबीर खड़े बाजार में और सबकी चाहे खेर, और ना कहो से दोस्ती और ना कहो से बेर। He quoted a few different couplets, but the first one says, a person who doesn't know that one, that essence which is in all of us, so what if they know a bunch of other things on the outside? All of these things on the outside get manifested from that one, and so knowing everything will not give you the knowledge of one, but knowing that one will give you the knowledge of all. और इसीलिए कबीर और अन्य संतों के सभी की वाणियों में वो हर जीव मात्र की रक्षा और सुरक्षा के लिए काम करते हैं। वो कहते हैं, झाड़ बिंद और जीव चराचर में फूल रहा मेरा साईं, और जहाँ देखूं वो रीता नाही, सब घट रहा समाई, मेरी आंखों में लालन छाई। जिसकी आंखों में इस तरह से प्रेम और सद्भाव की लाली चढ़ती है, उसे सब दूर वो नूर दिखता है, वो औरत आदमी नहीं दिखता, या देश प्रदेश या जो ड्युअलिटी नहीं दिखती। तो ये भांग पिले, धन्य तेरी। वो वाला नहीं करेंगे, साहिब ने भांग पिलाए फैलाए वो वाला, या क्या क्या करेंगे? नहीं, आप जो कह दो हम गा देंगे। प्रेम नगरी कौन सा? धन्य तेरी करतार कला धन्य तू तेरी करता थी। करतार। Oh, धन्य तेरी करतार। Couldn't be better. Okay. तो इसलिए जिन्होंने उसकी कला का पार पाया ना, तो उसको पत्ते पत्ते और जर्रे जर्रे में वो दिखा। तो ये जीवादास जी महाराज का एक पद है। जीवादास जी एक संत हुए, वो कहते हैं। तो देखिए सब संतों का यही है। और वो कहते कि सब वेद और शास्त्र में भी सब एक है, ऐसा बताते हैं। परंतु बताओ वेद शास्त्र की वजह से कितना झगड़ा हो रहा है कि हमारा भगवान अलग, इनका भगवान अलग, हम ज्यादा ऊंचे, ये ज्यादा नीचे, ये सब हो गया। तो फिर क्या जाना। So it's a beautiful little song, and listen for the chorus. And even I'll say the whole chorus in Hindi. And if you get the feeling of it, just come sing along, because the tune is quite lilting and easy. Dhanya teri karatar kala ka, par nahi koi pata hai. So, and that'll just get repeated and repeated. And if you think you get it, you can start singing along. This is a different poet who is a kind of a brother poet of Kabir. His name is Jiva Das. He describes this whole creation, this whole universe, as the art of the divine. And so the words go like this. Wondrous is your art, O Creator. No one can find its limit. That's the line I just said. Dhanya teri karatara kalaka, the art of your creation. Par nahi koi pata hai. Par means limit. No one can find its limit. Even being, this is the verses now that don't get repeated. Even being beyond form, you take care of all forms. Without form, without fetters, Lord, free of birth and death. The play of your power is strange. A rare one knows this mystery. Through your grace, a person can see that vision, can have that darshan. Sages, seers, saints, and holy ones meditate day and night.
Through the 4 forms of life and countless births, only one, only you, come into view. Your light shines in every leaf. It flashes like lightning. Amazed, his mind stunned, Jivadas sings your praise. साहिब तुम्हारी साहिबी, साहिब तुम्हारी साहिबीन सब घट रही समान। अरे जो मेहंदी के पात में वो लाली लगी नहीं जा। और जिन्होंने लाली को लगा लिया यानी मेहंदी को लगा लिया तो वो लाल हो गया, जबकि मेहंदी हरी है परंतु लगाने पर लाल हो जाता है, और जो लाल हो जाता है वो माला माल हो जाता है। नहीं तो लाली मेरे लाल की जिंदे कूत लाल, अरे लाली देखन में गई तो मेरी हो गई लाल। लाल लाल तो सब कहे, लाल लाल तो सब कहे, न सबके पल्ले लाल। पर गांठ खोल देखा नहीं तो यहाँ से भया कंगाल। सब बात करते हैं कि हमारा सबका मालिक एक है, सबको चलाने वाला एक है, हमारा परमात्मा एक है, यानी वो लाल सबका एक है। पर उन्होंने कभी भी उस लाल को खोल करके देखा ही नहीं, इस वजह से झगड़ा हो रहा है। जिस दिन वो खोल करके लाल को देख रहे हैं तो माला माल हो जाएंगे, यानी वो समझेगा कि बस सब तो लाल है, फिर कमी किस बात की। ये सब नासमझी का परिचायक है। इस वजह से संतों की वाणी केवल इस तरह से गा करके लोगों को लुभाने की नहीं है, या खाली सुनने तक नहीं है, वो महसूस करने की चीज़ है। इसलिए इसको हम महसूस करने का प्रयास करें ताकि हमारे जाल से बच सकोगे। यदि महसूस नहीं करोगे तो हमारे जाल में फंस जाओगे। इसलिए हमारे जाल में मत फंसो, खुद महसूस करके यदि अच्छा लगे तो मानो, नहीं तो मत मानो, क्या जरूरत है। इसलिए जीवादास जी का ये पद है,
गाता है सगुन भया मन बुद्धि तेरी जीवादास गुण गाता है ये है दीवानापन झपना। इसलिए यहाँ पर लोग कहते हैं कि हाँ पते पते पर रोशनी तेरी बिजली से चमक दिखाता है सगुन भया मन बुद्धि तेरी जीवादास गुण गाता है धन्य तेरी करतार कला का पार नहीं कोई पाता है धन्य तेरी करतार कला का पार नहीं कोई पाता है पार नहीं कोई पाता है ओ, पार नहीं कोई पाता है बहुत बहुत साधुवाद। बहुत अच्छा। हाँ, तो भावनगरी। ये भाव की नगरी थी वैसे। Somebody making a request? I mean, I'm not against a request. Somebody making a request? Bhavanagari. Which one? Bhavanagari. Bhavnagari. Bhavnagari. Are you up for another song? Yeah. Yes. Up for what? Another song. Yes. यस ठीक है। तो आप सबका भाव, आप सबका प्रेम, आप सबकी आत्मीयता हमारे साथ इसी तरह से बनी रहे और हम भी, हमारा भी आप सबके साथ में जो आत्मीय एक प्रेम और सद्भाव है वो इसी तरह से बना रहे। तो ये बना रहेगा तब, जैसे कि अब हम वहाँ से यहाँ आ गए इस देश में, अब हम ये भी चाहते हैं कि आप सब उस देश में आ जाओ। ये है भाव और प्रेम, और ये भाव प्रेम इधर का है, इधर इस देश में आ जाओ, ये है सच्चा भाव और प्रेम। इधर का प्रेम खत्म हो जाएगा परंतु इधर का प्रेम कभी मिटेगा नहीं। इस तरह से एक भजन है जो लिंडा जी को बहुत पसंद है वो, और उसमें वो उठ करके नाचने लग जाती कभी कभी। आज होगा, आज होगा। What was the last thing He he said? says, Linda likes it very Sometimes you dance to That this. you're going to start Sometimes dancing dance. today. Wait, I can't hear what? Sometimes you dance to this. Sometimes I dance. So you may. ये हमने गाया था तो नाचने लगे थे, इस वजह से मैं कह रहा था। हाँ Okay, listen. he says, Listen up, folks. Oh, you said it. Listen to him. he's saying this connection of love, compassion, kindness, and goodwill that we have right now, this should continue. And he also says, just like all of them came from that country, India, to this country, you should all also come to India, and then and also to this country, the country that is mad. तो आप So he picked up this song that has been requested. Bhav Nagari. Bhav means a deep feeling, and so he said that there's a great bhav in this room. This is a room where there's so much deep feeling, and so therefore this request has come up, and this is the right song. So Bhav Nagari, Prem Nagari, the city of deep feeling, the city of love. So you'll hear those words repeated. Bhav Nagari, Nagari is city, and Prem Nagari, Prem is love. Come to the Guru's country. Let me tell you about the city of true feeling, the city of love. Yes, come to my country. Let me tell you about the city of love. That's the chorus. Like a young tree, it's called a kachinar. I couldn't find an English word for this tree. Like a young kachinar tree with new buds, the craftsman has made this wondrous body, wondrously made, but full of problems. Come to the Guru's country, let me tell you of the city of love. Oh, Haley, once again, you're the girlfriend. Oh, girlfriend, when the golden moth, the color of turmeric, flies off at the hour of death, Haley, we'll go to that country. Let me tell you now about the city of love.
Oh, Haley, don't be proud of your body. It's a bag of skin. Let's go to this. It's a bag of skin full of problems. Let's go, Haley, to the Guru's country. Let me show you the city of deep feeling, the city of love. Bhavani Nath says, ये भवानी नाथ पहले और गुलाबी दास फिर हाँ. वो दोनों गुरु This शिष्य has a रहे हैं। very special ending. For me, it has a very special ending because usually we're always getting warned about the body, get beyond the body. Listen to this ending. Maybe my translation has slight prejudice. Bhavani Nath says, through singing songs like this, my body became good. It became good, Haley. It says, Kaya Sudhari, my body became improved. It became good. It became good, Haley. Very good. My body became good. जी दया भाव हृदय नहीं, दया भाव हृदय नहीं, ज्ञान कथे बेहार। अरे वो नरक में जाएंगे और सुन सुन साधी धागट प्रेम न संचरे न सोगट जान मसान। अरे जैसे खाल लोहार की श्वास लेत बिन प्राण, तो प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट विकार। बिना प्रेम का मानवा और बंदिया जम मुर्जा। तो प्रेम प्रेम तो सब कहे न प्रेम जीने को, अघट प्रेम पिंजर बसे और प्रेम कहा सो।
काची करी हो कचनार कारीगर काया अजब बनी काचे करी हो कचनार कारीगर काया अजब बनी अजब बनी हो काया अजब बनी अजब बनी हो काया अजब बनी तब तो हमारा देश बनेगा नारे भावनगरी जे गाया वो अहंकार गाया वो थारी चाम से बनी मत कर जे गाया वो अहंकार गाया वो थारी चाम से बनी चाम से बनी हो या में बगनी चाम से बनी हो या में बगनी तुम तो आओ हमारा देश बनेगा हमारे भावनगरी भवानी नाथ भजन से हमारी काया सुधरी भजन से मारी काया सुधरी काया सुधरी हो जासे एक बिसरी काया सुधरी हो जासे एक बिसरी हम तो आओ हमारा देश बनेगा हमारे भावनगरी हमारा देश बनेगा हमारे भावनगरी बनेगा हमारे भावनगरी बनेगा हमारे साची नगरी The last line, I left out one nice phrase. He said, from singing these songs, my body has become good and I've forgotten all the defects.